Hello guys, welcome to the Unique Compositions Academy of Music. So today we will discuss how to find guitar chords of any song. So for this example, I am taking some good websites on Google. So let's Google it, ultimateguitar.com, or let's take an example of any song. For example, let's take Tum Hi Ho, okay? Tum Hi Ho guitar chords. Okay, so we have searched this thing, and this website, what I will suggest for you in future also, tabs.ultimateguitar.com. okay, so the website is ultimateguitar.com. Mostly I search any song guitar chords here only. Okay, so as you can see in this screen, here is video also for the same, and this is the chord progression: E minor, C, D, B7, A minor, B minor, G. This much of chords are used in Tum Hi Ho song by Arjit Singh. Okay, so as you can see here, it is written difficulty novens. Okay, tuning E, B, G, D, A, our standard tuning, and capo in first fret, and the key is F minor. Okay, so if you scroll down, and you can see the starting intro, dun, 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 dun. That intro is something like this. You can see in the screen. Okay, what we can say this thing, this is tablature actually. Tablature. What is tablature? I will discuss in detail in upcoming videos. Okay, so here is the lyrics of the song. This verse, this is chords, and this where instrumental section is there. We will play some basic chords like E minor, B minor, A minor, E minor. Okay, and as I said earlier, we are using some B7. Okay, and let me see some other chords if there. So basically the main different chord is B7, what we have to learn here. So nothing to worry about. B7 looks something like this. So let's play this and see what else we get from this. So let's directly jump into a practical session. And if you want to download this thing, you can scroll down and press this print button, and here is the guitar chord. Print it and save it in your device like this. Okay, and you can actually download any guitar chords PDF free of cost from this website. So guys, आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा तुम ही हो chords by अरिजीत सिंह आपके फ़ोन के स्क्रीन पे. यहाँ पे दिखा रहा है डिफ़िकल्टी नोवेंस, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल बहुत कम है गिटार के chords के सीक्वेंस में, और ट्यूनिंग है E, B, G, D, A, E, है ना, और कैपो लगेगा हमारे फर्स्ट फ्रेट में, और की है हमारा F माइनर. सो कैपो हमको लगाना है फर्स्ट फ्रेट में, तो हमारा फर्स्ट फ्रेट ये होता है. तो यहाँ पे हम कैपो को प्रेस करेंगे और कुछ इस तरीके से लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है, सो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आपको कुछ कॉर्ड्स दिखा रहा है जैसे E माइनर, C, D, B7, A माइनर, B माइनर, G. तो आपको कुछ नहीं करना है. अगर आपने फर्स्ट फ्रेट में कैपो लगाया या किसी भी फ्रेट में आप कैपो लगाते हैं और आप ये सारे पैटर्न बजाना चाहते हैं, E माइनर, है ना, तो जो ओपन बजाते थे जब हम कैपो का यूज़ नहीं करते थे, तब जो कॉर्ड्स बजाते थे सेम वही कॉर्ड बजेगा कैपो लगने के बाद भी. तो हमारा E माइनर जो हम यहाँ बजाते थे सेकंड फ्रेट में, अब वो थर्ड फ्रेट में बजेगा. होप यू अंडरस्टूड. ओके, सो आप आगे देख पा रहे होंगे कैपो फर्स्ट फ्रेट लिखा है, फिर इंट्रो में स्ट्रमिंग लिखा है D, U, D, D ऐसे. ठीक है, म्यूट द लास्ट डाउन स्ट्रोक. एक्चुअल में ये स्ट्रमिंग का टेक्निक लिखा है उसमें, जो कि कुछ इस तरीके से. समझ गए. कुल मिला के आपको ज़्यादा स्ट्रमिंग नहीं करना है गाने में, क्योंकि सॉफ्ट सॉन्ग है, स्लो सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है. सो सूदिंग सा फीलिंग रहेगा इस गाने में. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा वहाँ पे एक डायग्राम है जिसे हम टैबलेचर बोलते हैं बेसिकली. कोई भी गिटार कॉर्ड्स
उसके अलावा जो गिटार के पोर्शंस होते हैं, कुछ गिटार के जो म्यूज़िक्स प्ले होते हैं गाने में, कुछ म्यूज़िक रहता है गाने के बीच में गिटार का, तो वो टैबलेचर के थ्रू हम उसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो टैबलेचर बना हुआ है, ठीक है। तो टैबलेचर में लिखा हुआ है सबसे, इसमें कैसे देखते हैं तो जो सबसे पहला नंबर लिखा हुआ है उसमें, है ना, सबसे स्टार्टिंग में, तो सबसे स्टार्टिंग में देखिए सारे स्ट्रिंग्स में जी स्ट्रिंग पे 9 लिखा हुआ है। मतलब हमको अपने 9th फ्रेट में कैपो लगने के बाद से 9th ना, तो अभी कैपो फर्स्ट फ्रेट में लग गया ना, तो हमारा फर्स्ट फ्रेट होगा सेकंड फ्रेट से एक्चुअल में, है ना। तो हमारा फर्स्ट फ्रेट यहाँ से है, क्योंकि फर्स्ट फ्रेट में कैपो लग चुका है, तो हमारा फर्स्ट फ्रेट अभी के लिए जब कैपो लगा हुआ है सेकंड फ्रेट में हम मानेंगे हमारा फर्स्ट फ्रेट है, और सेम रूल को फॉलो करेंगे जो आगे जैसा बोल रहा है गाने पे, ठीक है। सो यहाँ पे 9 8 7 लिखा हुआ है ना, 9 जी पे और 8 है बी पे और स्मॉल ई पे 7, ठीक है। फिर 8 है ना, तो वो चेंज हो रहा है देखिए। तो फिलहाल तो हम काउंट करेंगे अपना 9वां फ्रेट, एक फ्रेट छोड़ के, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9th फ्रेट है हमारा। 9th फ्रेट में हम क्या करेंगे, 9th फ्रेट जी स्ट्रिंग, मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम पकड़ेंगे हमारा 3rd फिंगर, ओके। और देखिए अब लिखा है 8th फ्रेट बी स्ट्रिंग, तो जस्ट नीचे एक फ्रेट पहले बी स्ट्रिंग पे अपना 2nd फिंगर रखेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट वाले स्ट्रिंग स्मॉल ई में हमारा फर्स्ट फिंगर को रखेंगे 7th फ्रेट पे, ओके। तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा, ओके। तो इस गाने को आप ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग में पियानो का पोर्शन है, डुन 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 डुन, ऐसा टाइप का। तो वो हम गिटार पे प्ले करने वाले हैं, तो वो टैबलेचर में हमने उसको बनाया है। सो टैबलेचर में अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा पोजीशन आपने पकड़ लिया ही होगा, है ना। इसके बाद हमको क्या करना है, आगे ध्यान दीजिए, 7 8 8 8 10 7 ऐसा लिखा हुआ वहाँ पे, और 7 और 8 कहाँ है, ई स्ट्रिंग में है, और बी स्ट्रिंग में 8 8 10 7 है, ठीक है। तो एक्चुअल में वो बोलना क्या चाह रहा है, शुरू से पढ़िए टैबलेचर और बजाते जाइए मेरे साथ, ठीक है। जी में 9th फ्रेट पे हमको रखना है अपना 3rd फिंगर, ठीक है। उसके बाद बी स्ट्रिंग में 8th फ्रेट 2nd फिंगर, और ई स्ट्रिंग में 7th फ्रेट 1st फिंगर। तो वो कुछ ऐसा साउंड करना चाहिए, इस पैटर्न में, इस स्पीड में बजाना है। सो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको जो बी स्ट्रिंग है वहाँ पे आके स्टॉप होना है, कुछ इस तरीके से, समझ गए। तो बी स्ट्रिंग में यहाँ आके स्टॉप हो रहे हैं, तो ध्यान दीजिए आप 8th फ्रेट में अपना फिंगर रखे हुए हैं, 2nd फिंगर, वहाँ पे आके स्टॉप होगा, ठीक है। फिर उसके आगे 8th नीचे वाले में रखना है, देखिए ध्यान दीजिए उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहाँ आके रुके उसके जस्ट नीचे ही वाले फ्रेट में अपना 2nd फिंगर को ही कुछ इस तरीके से ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या करना है, फिर क्या लिखा है उसमें, फिर 8 लिखा है, ठीक है। तो 8 8 8, ठीक। क्या करना है, 8 बी में, फिर 8 आपके ई स्ट्रिंग में, 8 फ्रेट ही है ना दोनों में, उसके बाद वापस 8 फ्रेट बी स्ट्रिंग करना है, ठीक है। उसके बाद बी स्ट्रिंग में 10th फ्रेट, ठीक है। फिर बी स्ट्रिंग में ही 7th फ्रेट, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा, देखिएगा, ठीक है।
इसको थोड़ा सा फास्ट बजाना है, पियानो जैसा उसमें बज रहा है सेम वैसा। समझ गए? अब इसी को मैं एकदम स्लोली प्ले कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि मैं क्या प्ले कर रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा पोजीशन है, और इधर फिंगर पे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, पिक की मदद से। प्रॉपर एक टेम्पो में प्ले करना है कुछ इस तरीके से। एटलीस्ट 4 टाइम्स प्ले करना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम कॉर्ड्स पे आएंगे डायरेक्ट। ठीक है, आपको आपके स्क्रीन स्क्रॉल करना है और वर्ड्स लिखा है वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, तो हमारा ई माइनर लगता था यहाँ पे, देखिए। ठीक है, कहाँ लग रहा है हमारा ई माइनर? सेकंड फ्रेट पे। बट जब हमने कैपो लगा दिया तो सब चीज़ें, जितने कैपो आप आगे बढ़ाएं उतना आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, सब चीज़ें। ठीक है, और रूल सेम रहेगा, वहाँ भी सेकंड फ्रेट में ही लगाते थे, एक फ्रेट छोड़ते थे, तो यहाँ भी हम एक फ्रेट छोड़ेंगे और फिर लगाएंगे हमारा ई माइनर। ओके, इतना क्लियर हो गया आप लोग को? सो चलिए अब देखते जाइए क्या लिखा है ई एम वर्स में ना, ई एम सी डी B7 C। ओके, तो ये क्या है? ये कॉर्ड्स हैं, है ना। ई एम मतलब ई माइनर, सी लिखा है सिर्फ, कुछ नहीं लिखा मतलब सी मेजर। ठीक है, और B7 जो यहाँ पे है वो एक नया कॉर्ड है, वो कैसे पकड़ते हैं मैं पहले वो बता देता हूँ। वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा स्क्रीन स्क्रॉल ऊपर कीजिए तो आपको दिख जाएगा B7। जूम करेंगे तो स्क्रीन को, ये है आपका B7। ध्यान से देखिए, मैंने स्क्रॉल करके जूम करके बड़ा करके दिखाया है ना। तो यहाँ पे फिंगर पोजीशन भी लिखा है 4 3 1 2। तो हमको कहाँ पकड़ना है? हमारे सेकंड फ्रेट, कैपो लगाने के बाद सेकंड फ्रेट। ठीक है, मतलब ऐसे में थर्ड फ्रेट है बट कैपो लगाने के बाद वो सेकंड फ्रेट कहलाएगा, क्योंकि एक फ्रेट में तो हमारा कैपो ही लगा है ना। तो सेकंड फ्रेट में फोर्थ फिंगर, जो हमारा लास्ट वाला फिंगर है, पिंकी फिंगर, वो फर्स्ट स्ट्रिंग पे लगेगा सेकंड फ्रेट पे, जहाँ ये आपका पोजीशन डॉट है। ठीक है, कैपो के केस में। और क्या लिखा है फिर? 3 लिखा है। 3 कहाँ लगेगा? हमारे जी स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक, और हमारा जो कौन सा फिंगर लगा जी स्ट्रिंग के ऊपर? ध्यान से देखिए, जी स्ट्रिंग के ऊपर लगा हमारा थर्ड फिंगर। ठीक, तो ये ऐसा हो गया। बी स्ट्रिंग में कुछ फिंगर नहीं रखना, ओपन प्ले होगा। ठीक, 3 स्ट्रिंग क्लियर हो गया। अब हमारा जो सेकंड फिंगर है उसको रखना हमको ए के ऊपर, सेम फ्रेट में ही, और जो हमारा फर्स्ट फिंगर है उसको हमको रखना है डी के ऊपर, फर्स्ट फ्रेट में। ओके, कुछ इस तरीके का। चलिए अब इसको प्ले करते हैं, साउंड सुनते हैं, एक एक स्ट्रिंग प्ले करेंगे। ये है B7, मतलब आप जो बी मेजर बजाते थे उसका 7वां सुर इसमें ऐड हो गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? सबसे टॉप वाला स्ट्रिंग देखिए क्रॉस लिखा हुआ वहाँ पे, मतलब वो प्ले नहीं करना है। ओके, तो ये था हमारा B7। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं गाने की ओर। तो हम पोर्शन बाय पोर्शन बढ़ते जाएंगे, स्लोली स्लोली गाते जाएंगे। आपको भी सेम इसी पैटर्न में प्रैक्टिस करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ई माइनर लगाना है वर्स में, जो पहला कॉर्ड है। सेकंड है सी मेजर, थर्ड है डी मेजर, फोर्थ है B7 जो कि मैंने अभी आपको बताया कैसे लगेगा, और फिर सी। ठीक है, वो पैटर्न चलते जाएगा, इसमें देखते रहिएगा कैसे कैसे प्ले हो रहा है। तो चलिए अब गाना शुरू करते हैं। ई माइनर लगाएंगे। कभी भी गाना गाने से पहले जो कॉर्ड आप प्ले कर रहे हैं उसके साथ अपना सुर मिलाइए। गले का वोकल कॉर्ड है, उसके अंदर से जो वॉइस आ रही है उसका फ्रीक्वेंसी, उसका पिच मैच होना चाहिए आपके कॉर्ड्स के साथ। ओके, ठीक है, मैच हुआ। हम
तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको प्ले करना है। तो हम इसको एकदम स्लोली करते हैं ताकि आपको सारा डिटेलिंग समझ में आए, जो एक गाने के पीछे जो कॉर्ड्स बजाने का डिटेलिंग होता है गाने के पीछे, है ना। तो पहला है हमारा ई माइनर वर्ड्स में, तो ई माइनर लगाते हैं। तो ई माइनर में हमको प्लकिंग करना है। बहुत ही सिंपल है, डाउन स्ट्रोक में सारे तार को एक एक बार हिट करते जाओ, फिर अप स्ट्रोक में लास्ट वाला स्ट्रिंग भी जो छोड़ दिए हैं अभी के लिए। ठीक, हम तेरे बिन अब, इतने में ई माइनर लगा था। ठीक है, रह नहीं सकते में सी मेजर लग जाएगा। तो अब सी मेजर बजाते हैं। पोजीशन तो आपको पता ही होगा बेसिक कॉर्ड्स का, जो मैंने सिखा चुका है पहले ही, है ना। रह नहीं सकते, ठीक है, देखिए, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते। ठीक है, अब क्या है, डी लग रहा है, तो डी बजाइए। तेरे बिना, डी में ध्यान रखिएगा ऊपर का 2 स्ट्रिंग नहीं बजेगा, लास्ट के 4 स्ट्रिंग ही बजेंगे। प्लकिंग ही करना है, इसको प्लकिंग बोलते हैं, कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। नीचे की ओर मारते जाइए सारे स्ट्रिंग्स को, फिर ऊपर की ओर। ठीक है, तेरे बिना क्या वजूद, और मेरा यहाँ पे 2 कॉर्ड लग रहा है। क्या में ही आपको शिफ्ट करना है, क्या और वजूद के बीच में एक्चुअल में, है ना, जो B7 लग रहा है। तो चलिए B7 लगाते हैं। ये लग गया हमारा B7। ठीक है, B7 लगाएंगे और तुरंत ही C मेजर लगाएंगे। ठीक है, तो वो कुछ ऐसा होगा, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, समझे, तेरे बिना क्या। ठीक, अब B7, क्या वजूद मेरा, मेरा में C। ठीक है, तो चलिए फिर से बजाते हैं सेम चीज, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। अब चलिए पूरा रिपीट करते हैं, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। समझ गए। अब इसी को स्ट्रमिंग में भी बजा सकते हैं, है ना, क्योंकि गाना अनप्लग्ड है। एक्चुअल में मैं जो अभी प्लकिंग बजा रहा हूँ ये ओरिजिनल गाने में यूज़ हुआ है ना। ओरिजिनल गाने में स्ट्रमिंग नहीं हुआ है यहाँ इस पोर्शन में। तो अब स्ट्रमिंग में इसको कैसे प्ले करेंगे, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। ठीक है, तो अब कॉर्ड्स क्या क्या लग रहे हैं आपको पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं वजूद मेरा के बाद में। फिर से ई माइनर, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसा बज रहा है इसमें, तुझसे जुदा अगर, घर के बाद हो जाएंगे में सी, हो जाएंगे। फिर आगे क्या है, तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, यहाँ पे D B7 C। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से भी हो, D लग रहा है,
हो और जाएंगे में B7, फिर जुदा में C। हो जाएंगे जुदा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। ठीक है, अब आ रहा है कोरस। कोरस में थोड़ा स्ट्रोइंग पैटर्न थोड़ा और इम्प्रूव होगा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। ठीक है, तो ऐसा स्ट्रोइंग चलेगा यहाँ पे। तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। देखा कितना वेरिएशन है गाने पे। जो वेरिएशन का मैं बात करता था ना, किसी भी गाने में एक पर्टिकुलर 4 कॉर्ड्स ही नहीं लगते, वो इस पे गाने पे प्रूफ हो रहा है, इसीलिए मैंने ये गाना चूज़ किया है। तो चलिए, क्योंकि तुम ही हो ई माइनर, अब तुम ही हो में क्या है ए माइनर लग रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, सी नहीं लग रहा है ना उस समय के जैसे। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, ए माइनर लगा लिया। ठीक, जिंदगी में डी, ठीक है, फिर अब तुम में बी माइनर, फिर हो में सी। यहाँ पे वेरिएशन है एक्चुअल में। जिंदगी डी, अब बी माइनर, अब तुम ही सी मेजर हो। समझ गए? क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। ठीक है, अब इसके बाद आगे इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक बजता है वहाँ पे। तो वहाँ पे कॉर्ड्स ये है लिखा हुआ वहाँ पे, देखिए ध्यान से, ई माइनर, बी माइनर, ए माइनर, फिर ई माइनर। तो ये 4-4 के सेट में चलता है कुछ इस तरीके से। फिर से बता रहा हूँ, तो जहाँ पे बाकी म्यूज़िक रहता है दूसरे इंस्ट्रूमेंट का, इंस्ट्रूमेंटल है ना, वहाँ पे कॉर्ड्स में अकम्पनी करता है एक रिदम गिटारिस्ट, है ना। और बाकी जगह एक्चुअल में एक गाने में पूरा रिदम और पूरा प्लकिंग नहीं बजता, मिक्स बजता है, या 2 गिटारिस्ट अलग होते हैं इस दोनों चीज़ों के लिए, और जो म्यूज़िक बीच में बजता है उसके लिए कोई एक और अलग गिटारिस्ट होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे वर्ड्स की ओर। सेकेंड वर्स है जो ई माइनर। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, ई माइनर, फिर रिश्ता में सी। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, मैं प्लकिंग कर रहा हूँ ना, आप स्ट्रमिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, डिपेंड्स। अगर आपको ओरिजिनल वर्जन बजाना तो प्लकिंग होगा, बट अगर आप रिदम के साथ बजाना में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और ज़्यादा आपको बीट मिलता है, प्रॉपर एक टाइमिंग मिलता है गाने का, तो रिदम के साथ बजा सकते हैं, है ना। तो ये ऐसा होगा, तेरा मेरा सी रिश्ता है ऐसा। ठीक, फिर अब डी है, एक पल दूर, दूर खत्म होते ही बी माइनर 7, ओके, एक पल दूर गवारा नहीं, फिर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरा वर्स कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सेम आपको कॉपी पेस्ट करना जैसा मैं सिखा रहा हूँ, पूरा गाना A to Z बहुत अच्छा बजेगा। तेरा मेरा
रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवार नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा, यहाँ पे देखो कोई लम्हा, यहाँ वेरिएशन है गाने में, तो यहाँ डी लग रहा है, फिर जी लग रहा है, जो आउट ऑफ द रेंज है इस गाने के, और अचानक से एकदम एक नया कॉर्ड हिट होगा। ध्यान से सुनना वेरिएशन को। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, बिना। कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना। बी माइनर 7 लग रहा है। हर सांस पे नाम तेरा। समझे कितना वेरिएशन है यहाँ पे। बी माइनर 7, हर सांस पे नाम, नाम का सी, फिर तेरा वहाँ तक सी, फिर जो वहाँ पे हमिंग है वहाँ पे डी। फिर से अब कोरस रिपीट होगा। कोरस का जो कॉर्ड प्रोग्रेशन है वो सेम रहता है। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, आशिकी, अब तुम ही हो। अब ब्रिज आता है गाने में, है ना। ये एक्चुअल में होता है एक सीक्वेंस, वर्स 1, वर्स 2, उसके बीच में कोरस, फिर वर्स 2 के बाद भी कोरस, फिर ब्रिज, उसके बाद फिर वर्स, फिर कोरस। गाने का एक सीक्वेंस होता है। मुखड़ा, अंतरा, वो सब बोलते हैं ना, वही होता है बेसिकली। ब्रिज में यहाँ पे वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के, मतलब जो कंपोजिशन है वो थोड़ा डिफरेंट टाइप का चेंज होता है गाने में, और वहाँ पे थोड़ा सा कुछ हमिंग रहता है या कुछ सुरों के साथ खेलते हैं, है ना। तो वहाँ पे कैसा कॉर्ड लगेगा वो भी बताया गया है ब्रिज में। तो वो ऐसा है, ई माइनर, बी माइनर, ए माइनर, ई माइनर। ठीक है, अब आगे आते हैं। यहाँ पे पूरा ही वेरिएशन है तेरे लिए में, ठीक है। सी लग रहा है यहाँ पे गाने के स्टार्टिंग में, इस वर्स के स्टार्टिंग में बेसिकली। फिर बी माइनर लग रहा है, फिर सी लग रहा है, फिर बी माइनर लग रहा है, फिर ए माइनर, फिर ई माइनर। तो आपको ये पैटर्न और पूरा सीक्वेंस लिरिक्स के अकॉर्डिंग कॉर्ड्स याद होना चाहिए, तब आप कोई गाने पे परफॉर्म कर सकते हो एक्यूरेट कॉर्ड्स बजा के। इसका शॉर्टकट भी है, आप बेसिक कॉर्ड्स लगा के भी पूरा गाना गा सकते हो। बट अगर आपको ऑडियंस को रियली में रुलाना है सैड सॉन्ग से, और रियली में हंसाना है हैप्पी सॉन्ग से, तो हर एक कॉर्ड्स को प्रॉपर जगह पे, प्रॉपर लिरिक्स पे, प्रॉपर सुरों के साथ, कंपोजिशन के साथ प्ले करोगे तो होगा। तो चलिए अभी बजाते हैं हमारा वर्स। तेरे लिए ही जिया मैं। बहुत हाई है ये वाला, रेंज बहुत हाई है गाने का यहाँ पे। खुद को जो यूं दे दिया है। फिर ए माइनर, यहाँ पे एकदम सॉफ्टनेस लाना है, फिर ना मतलब गले को एकदम खींचना है हाई रेंज में, फिर सॉफ्ट लाना है फिर से नीचे। तेरी वफा ने मुझको संभाला, ई माइनर, ए माइनर, फिर ई माइनर। तेरी वफा ने मुझको संभाला, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला। ए माइनर, ई माइनर, ए माइनर, ई माइनर, ठीक है, इतने लाइन्स। अब यहाँ पे फिर वेरिएशन है। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, ठीक है। क्या था? डी, फिर जी। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, फिर
B7 फिर से तुझे पाके अधूरा न रहा। बहुत ही वेरिएशन है यहाँ पे, लेकिन अगर ये आपने निभा लिया तो गाने के रूट को पकड़ लिया एकदम, उस फीलिंग्स को। तो इसको रिपीट करते हैं पूरा वर्ड्स के स्टार्टिंग से। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला, सारे गमों को दिल से निकाला, तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा, तुझे पाके अधूरा न रहा। कितना अच्छा लगा, सोचो कॉर्ड्स एकदम निभाओगे तो। चलो अब कोरस रिपीट होगा यहाँ पे वापस से, ई माइनर। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। बी माइनर फिर सी। ठीक है, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये दोनों कॉर्ड को ना लगा के वहाँ पे गाने को एंड कर दो, पूरा आगे कंटिन्यू ना करो आगे, क्योंकि गाना और लंबा है। फिर वही रिपीट होता है कोरस 2 राउंड्स, फिर गाना कंप्लीट होता है। तो चलिए कोरस भी रिपीट ही कर लेते हैं हम एक बार पूरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, अब तुम ही हो। इसका ध्यान रखना, अब तुम ही हो। ठीक है, और वहाँ पे तेरे लिए ही जिया मैं खुद को जो यूं, वहाँ पे वेरिएशन है बहुत और बहुत हाई है। फिर वापस से नीचे आना है। तेरे साथ मेरा है नसीब जुड़ा। ठीक है, तो वो ध्यान रखने का, फिर पूरा गाना सेट है, पूरा गाना सही से बजेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं, बहुत ही लंबा हो गया, बट होप सो आपने एंजॉय किया होगा ये वेरिएशंस के साथ गाना प्ले करने के लिए। और कुछ भी डाउट्स हो तो डू कॉल मी, मैसेज मी, मेल मी। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।